Good morning and Jai Hind everyone. So dear students, welcome to class of geography, and the chapter which is going on is weather and climate. Weather and so dear students, we are discussing weather and climate. So it is my humble request to all my students, please open your book and this chapter, weather and climate. So let's start chapter weather and climate. So dear students, in weather and climate, today's period we will start with atmospheric pressure. Like any other matter, air also has its weight. The atmosphere exerts its weight as pressure on the Earth's surface. I am repeating it. The atmosphere exerts its weight as pressure on the Earth's surface, and that is atmospheric pressure. So just remind it that air too has weight. The weight of an air, we are talking about the weight of an air column standing over 1 square centimeter area of the earth is more than 1 kg. Again I am repeating, the weight of an air column which is standing over 1 square centimeter of area of the earth, that is more than 1 kg. And you know, the weight of the air column is maximum at the mean sea level. At the mean sea level, the weight of the air column is maximum. The atmospheric pressure is measured. How we measure? So the atmospheric pressure is measured with the help of an instrument called barometer. जस्ट हमेशा इसको याद रखो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है बैरोमीटर. द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अबाउट 76 सेंटीमीटर ऑफ द मरकरी कॉलम इन द बैरोमीटर. बैरोमीटर में मरकरी कॉलम बने होते हैं. So the normal atmospheric pressure at sea level is about 76 centimeter of the mercury column in the barometer. और you know what is the unit? कौन सा यूनिट है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं? तो दैट इज मिलीबार, MB. So millibar is the unit for measuring atmospheric pressure. The height of 3 millimeter of mercury column in the barometer shows 4 MB of air pressure. यानी अगर मरकरी कॉलम में 3 मिलीमीटर तक हाइट गई तो एयर प्रेशर कितना होगा? 4 MB, 4 MB, 4 millibar. Clear? And now I am showing the picture of barometer. Dear students, just see it.
This is the barometer, and it is an instrument. This is Android barometer, and by this we measure atmospheric pressure. Clear, students? Okay, now the atmospheric pressure varies from place to place and from time to time. ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये अलग अलग जगहों पे वेरिएशन हो सकता है इसमें, और टाइम के हिसाब से भी वेरिएशन हो सकता है. So the variation in the atmospheric pressure is due to the, what are the reasons for the variation in the atmospheric pressure? And the reasons are temperature, that is due to the temperature of the air, density of the air, height of a place above the sea level, amount of the moisture present in the air. So the variations in the atmospheric pressure is due to the temperature of the air. एयर का टेम्परेचर क्या है, एयर की डेंसिटी क्या है, किस जो सी लेवल है उसके ऊपर किस हाइट पर है, और कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है. After that, the air which rests on the earth's surface expands on being heated and becomes light. ये जो एयर है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर है, वो हीट होने के बाद एक्सपेंड करता है और लाइटर हो जाता, हल्का हो जाता है. ठीक है? When Earth's the air which rests on the Earth surface, जो अर्थ सरफेस के पे जो एयर है, वो जब हीट होता है तो वो लाइट हो जाता है. और ये क्या होता है, जैसे ये लाइट होता है, इट राइजेस अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ राइज करता है, एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. ठीक है? एयर जब हीट होता है तो लाइट हो जाता है और वो ऊपर की तरफ राइज करता है, राइज अपवर्ड. और फिर क्या है, जहां से वो एयर जो जगह छोड़कर ऊपर जाता है, वहां पर वो एक एरिया ऑफ लो प्रेशर क्रिएट करता है. क्लियर? इन कंट्रास्ट द कोल्ड एयर. अब कोल्ड एयर के साथ क्या, जैसे हीट, एयर जब हीट होता है तो एक्सपेंड करता है, लेकिन जब एयर कोल्ड होता है देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स करता है और एंड बिकम्स हैवी, और ये क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, एंड सेटल्स डाउन, वो नीचे सेटल हो जाता है, एंड दिस क्रिएट्स एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर. क्लियर? सो व्हेन एयर हीटेड becomes light, rises upward and creates an area of low pressure. When air cooled, it contracts, becomes heavy and settles down and creates an area of high pressure. Clear? Now air moves from a region of high pressure to a region of low pressure. तो एयर कैसे मूव करता है, हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है. क्लियर? ओके. देन द वेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर बॉडी इज सेवरल टन्स. ठीक है? हमारे बॉडी पे जो एयर प्रेशर का जो वेट है वो सेवरल टन्स है. बट क्या हम कभी अवेयर है इसके लिए? बट वी आर रियली अवेयर ऑफ इट. हमको बिल्कुल पता नहीं चलता, बिकॉज वाइल एयर प्रेसेस आवर बॉडी फ्रॉम ऑल साइड्स, आवर बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट्स काउंटर प्रेशर टू बैलेंस इट. जब चारों तरफ से एयर जो है हमको प्रेस करता है, उसी समय हमारा बॉडी भी जो है वो काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करता है इसको बैलेंस करने के लिए. क्लियर? So the tendency of the atmospheric pressure is that
क्या है टेंडेंसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? इट डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। मैंने कहा था ना, एयर जो है जब वो हीट होता है तो लाइट हो जाता है। सो इट डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन इट डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जब ज्यादा हाइट पे जाओगे तो भी ये इसका प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है। Moist air exerts less pressure than dry air. ये जो moist air हैं वो कम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ड्राई एयर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज मोडिफाइड बाय द अर्थ्स रोटेशन। अर्थ के रोटेशन की वजह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज मोडिफाइड। क्लियर? So, the tendency of atmospheric pressure is that it decreases with an increase in temperature, it decreases with an increase in altitude, moist air exerts less pressure than dry air, the Earth's rotation modifies its distribution. अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। So, the distribution of एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां है? पहले भी बताया है, इट इज हाईएस्ट एट द सी लेवल। सी लेवल पे बहुत ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप देखते भी होंगे कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं उधर। बट ऑन द माउंटेन्स, जब आप माउंटेन्स पे जाओगे, द थिकनेस एंड डेंसिटी ऑफ एयर कॉलम इज लेस and hence the atmospheric pressure is also less. अगर आप माउंटेन सी लेवल पे तो ये हाईएस्ट है, लेकिन अगर माउंटेन्स पे जाओ तो इसका थिकनेस और जो डेंसिटी ऑफ एयर कॉलम है वो कम हो जाता है। Hence the atmospheric pressure is also less. इसलिए वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर? आफ्टर दैट the atmospheric pressure on the surface of the earth is not the same. अगर अर्थ के सरफेस की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब जगह एक जैसा नहीं है। एंड व्हाई? दिस इज ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अनइक्वल हीटिंग की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अर्थ के सरफेस पे वो एक जैसा नहीं है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड इंक्रीज from the equator towards the poles. क्या है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाओ तो इसको बढ़ना चाहिए। इक्वेटर एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, है ना? तो जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। बट इट इज नॉट सो। एट सम प्लेसेस इट इज मोडिफाइड बाय द अर्थ्स रोटेशन। कुछ जगहों पे अर्थ का रोटेशन इसको मॉडिफाई करता है। सो देयर आर 7 मेजर प्रेशर बेल्ट्स ऑन अर्थ एंड दीज आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। अर्थ पे 7 मेजर प्रेशर बेल्ट्स हैं और ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जस्ट लुक दिस, है ना? पोलर ईस्टर्लाइज, सब पोलर लो प्रेशर, प्रिवेलिंग वेस्टर्लाइज, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, दीज आर द बेल्ट्स। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, है ना? ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, पोलर ईस्टर्लाइज, हाई प्रेशर। So mainly if we will talk about the pressure belts, high pressure, subpolar low pressure, subtropical high pressure, that is also known as
Horse latitudes, then equatorial low pressure, tropical high pressure, subpolar low pressure and high pressure. These are the different types of pressure belts. After that, अब हम लोग बात करेंगे winds की. Winds, you know, air blows from a high pressure region to a low pressure region. ये हमेशा याद रखो, एयर जो है वो हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करता है. ऐसा क्यों होता है? मैंने पहले कहा कि जब एयर हीट होता है तो एक्सपेंड होता है और ऊपर की तरफ राइज करता है, और जब कूल होता है, कंट्रैक्ट होता है, हैवी होता है, तो नीचे की तरफ डाउन हो जाता है, सेटल कर जाता है. इस सीक्वेंस से होता क्या है कि एयर जो है हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की ओर ब्लो करता है. और एक चीज हमेशा के लिए याद रखो, एयर दैट मूव्स हॉरिजॉन्टली दैट इज कॉल्ड विंड. जो एयर हॉरिजॉन्टल मूव करता है उसको विंड बोलते हैं. आज से हमेशा के लिए याद रखो, अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है एयर, दैट इज विंड. और अगर वर्टिकल मूवमेंट है फ्रॉम डाउन टू टॉप या टॉप टू डाउन, दैट इज नोन एज एयर करेंट. तो अगर एयर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है दैट इज विंड, एंड वर्टिकली मूव कर रहा है दैट इज एयर करेंट. याद रहेगा? ओके, नाउ नेक्स्ट. और यू नो विंड इज नेम्ड. ये विंड को कैसे नेम करते हैं? तो विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज. ये जो विंड है ना, इसका नाम उस हिसाब से होता है कि किस डायरेक्शन से वो ब्लो कर रहा है. अगर विंड वेस्टर्न साइड से ब्लो कर रहा है तो वेस्ट विंड, ईस्टर्न साइड से ब्लो कर रहा है तो ईस्ट विंड. और यू नो, ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से विंड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से विंड जो है जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है तो वो राइट की तरह डिफ्लेक्ट करता है, और जब वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है तो वो लेफ्ट की तरफ ब्लो करता है या डिफ्लेक्ट करता है. ऐसा क्यों होता है? क्यों ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरह डिफ्लेक्ट करता है? बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन. ये देखिए, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना? इजिली सी, यू कैन सी विंड सिस्टम. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करना, जिधर से भी हवाएं आती हैं वो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं. और सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखो तो लेफ्ट की तरफ हवाएं जिधर से भी आए वो अपने लेफ्ट की तरफ, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी, और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी. दिस इज द विंड सिस्टम डियर स्टूडेंट्स. ओके, now we are going to talk about speed of the wind. So the speed of the wind also varies greatly. If there is a quick change in the atmospheric pressure, it causes the wind to blow fast and vice versa. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्विक चेंज आए तो विंड जो है वो फास्ट ब्लो करता है, और इसी तरह से वो ब्लो करता है, बढ़ता रहता है. इन 1805 में अ ब्रिटिश नवल ऑफिसर नेम्ड सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट, he devised a 13 level scale to represent the strength of the wind. उन्होंने 13 लेवल स्केल रिप्रेजेंट किया विंड के स्ट्रेंथ को बताने के लिए. यू कैन सी दैट पिक्चर इन योर बुक. सो ब्रिटिश नेवल ऑफिसर इन 1805 नेम्ड सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट
devised a 13 level scale to represent the strength of the wind. And you know, this scale ranges from absolute calm conditions to a hurricane. वो एब्सोल्यूट विंड के एब्सोल्यूट काम कंडीशन से लेकर और हरिकेन तक का, इस तरह से टोटल 13 स्केल्स बनाए हैं. आपकी बुक में ऑलरेडी वो पिक्चर दिया हुआ है, यू कैन सी इट एंड इवन आई एम शोइंग यू. देखो ये बियोफोर्ट स्केल है, इसमें बियोफोर्ट नंबर्स दिए हैं. उसके बाद विंड स्पीड माइल पर आवर दिया हुआ है. देन सीमेंस टर्म क्या उसको कहा जाएगा, इवन कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं. एंड इफेक्ट्स ऑन लैंड. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के टर्म्स हैं विंड के स्पीड के हिसाब से, लाइक काम, लाइट एयर, लाइट ब्रीज, जेंटल ब्रीज, मॉडरेट ब्रीज, फ्रेश ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, मॉडरेट गेल, फ्रेश गेल, स्ट्रॉन्ग गेल, होल गेल, स्टॉर्म एंड हरिकेन फोर्स. ठीक है ना, और साथ में ही उसके अलग अलग स्केल दिए हैं. सो 0 से 12 तक टोटल 13 स्केल्स हो गए. आफ्टर दैट विंड की स्पीड क्या है, कौन सा टर्म उसके लिए यूज करते हैं, इवन पिक्चर्स आर गिवन, इवन वन पिक्चर इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो. आप उसको अच्छे से देख लो, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि जो विंड का डायरेक्शन है वो कैसे पता लगा सकते हैं. तो द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज फाउंड विथ द हेल्प ऑफ ए विंड वेन. विंड वेन की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि विंड का डायरेक्शन किधर है. ये आप डायग्राम, जस्ट सी द डायग्राम इमेज. दिस वन इज विंड वेन, है ना, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, दैट इज ऑलरेडी शोइंग. और जो एरो है, जिधर भी विंड का डायरेक्शन होगा वो आपको वो एरो से पता चल जाएगा. क्लियर? सो the direction of the wind is found with the help of a wind vane, and this is the image of wind vane. Clear? Now the speed. अब ये कैसे पता लगाएं कि विंड की स्पीड कितनी है. So the speed of the wind is measured with an anemometer. So an anemometer is an instrument from which we can measure the speed of the wind. And just see the image of anemometer. Look this. Like this you can measure the speed of the wind by this instrument. Okay dear students? Okay. The direction and the speed of the wind are never fixed. ना तो विंड का डायरेक्शन और ना विंड की स्पीड, ये फिक्स नहीं होता कभी भी. So we can broadly classify winds into 3 major types. तो winds को जो है broadly 3 मेजर टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज प्लैनेटरी विंड्स. डियर स्टूडेंट्स, सम विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर. कुछ विंड्स ऐसे हैं जो पूरे साल एक ही डायरेक्शन में ब्लो करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली. And these winds are known as prevailing winds or permanent winds or planetary winds. ठीक है, जो winds पूरे साल एक ही डायरेक्शन में ब्लो करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, they are known as planetary winds. Planetary winds are also known as prevailing winds or permanent winds. These winds originate due to the presence of permanent high pressure and low pressure belts
on the surface of the earth. ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं ये winds? Presence of permanent high pressure belt and low pressure belts on the surface of the earth. And the main types of planetary winds are the trade winds, the westerlies winds and the polar winds. इसको याद रखिएगा. These are the main types of planetary winds: trade winds, the westerlies and the polar winds. Clear? Now the second type is periodic winds. What are periodic winds? Certain winds have a tendency to reverse their direction periodically. कुछ ऐसे winds हैं जो टाइम्स टू टाइम अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं. These winds blow in a definite direction during a particular period of the day or year. ये जो winds हैं एक definite direction में blow करते हैं किसी particular day या year में. And these are known as periodic winds. ऐसा क्यों होता है? So they are caused by the unequal heating and cooling of the earth's surface and the localized difference in the atmospheric pressure. You know ना कि अर्थ का सरफेस जो है वो अनइक्वल हीट और कूल होता रहता है और यहां तक कि लोकल उस एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का में कितना डिफरेंस है. इन दोनों वजहों से पीरियोडिक विंड्स जो है दे आर फॉर्म्ड. द मेन टाइप्स ऑफ periodic winds are the monsoon winds and land and sea breezes. Land and sea breezes आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, and picture is already given in your book. मैं भी दिखा देता हूं. This is the picture of land breezes. देखो स्टूडेंट्स, लैंड जो है वो जल्दी हीट हो जाता है. तो जब लैंड हीट होता है और जब एयर उस लैंड को टच करता है तो वो भी हीट हो जाता है. ठीक है, हीट होके राइज होता है और उसकी जगह पे जो सी से जो कूल एयर होते हैं वो आते हैं तो वो हाई प्रेशर बेल्ट बनाता है. आफ्टर दैट सी ब्रीजेस. Just see it properly. Warm air from land, then cool air from ocean, and it creates high pressure belts and low pressure belts. And the third type of wind is local winds. In many parts of the world, winds with special characteristics blow over small areas. वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लिए विंड जो है वो स्मॉल एरिया में ब्लो करता है. These winds blow for a short time and such winds are called local winds. और उसमें से ज्यादातर जो है वो सीजनल होते हैं और जो उनके नाम हैं वो भी रीजनल लैंग्वेजेस के हिसाब से उनके नाम हैं. जैसे अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो हम लोग बोलते हैं ना लू चल रहा है ना, गर्मियों में बोलते हैं लू चल रहा है. हॉट एयर्स विच ब्लो, कहीं पर ये चिनूक के नाम से फेमस है, कहीं पे फोएन एंड कहीं पे हरमटन. सो दीज आर द लोकल नेम्स ऑफ लोकल विंड्स. अंडरस्टैंड? So dear students, we have discussed many topics today. It is my humble request to read these topics carefully. Just read and read it again and again. So that's all for today. Thank you.
and have a nice day.